Hello, everyone. In our previous conversations, we've spoken about a lot of things. We've spoken about mental health issues. We've spoken about new education policy. We've spoken about how things are working right now. We've spoken about technology, and there are different people who've shared their views. We've heard from educators. We've shared from policymakers. We have heard from government, but we haven't really heard from our students over there on the ground. What are the challenges they are facing during this pandemic? And here we are with our students from Jahangirpuri. They study in Sarvodaya Kanya Vidyalaya, and they're here to share their experience of studying during COVID pandemic. And so I would like all the students to introduce themselves. Gungun. बेटा अनम्यूट कर लो माइक. Hello everyone. My name is Gundun. I am reading 10th class. My school name Rani Chennamma Sarvodaya Kanya Vidyalaya, and I live in Jahangirpuri. My passion is I write in a dear diary, and my hobbies also I like to write a dear diary. Okay. Hina. Hello everyone, I am Hina from Jahangirpuri and I am in 10th grade. I would like to thank Didi and Bhaiya to join me. So thank you so much. Kashish. Hello everyone, I am Kashish. I live in Jahangirpuri, the same community in which Hina and Gungun live. I read in 10th grade in a school of excellence, Rohini Sector 17. My hobbies are writing dear diary, reading books, and I have just recently completed reading my Harry Potter series. And I can now proudly say that I am a Potterhead. So yeah, reading stories, writing poetry, these are my hobbies. And I wish to become, I want to do a lot of things, not a fixed thing. So I'm still exploring what I will do in my future. Thank you. Okay. And thank you so much for the introduction. Let's just hear from all the Didis and Bhaiyas here. Can we go ahead, Praneeth? Here, as in you want to give me an introduction? Yeah, like one liner. Okay, cool. Thanks for sharing, kids. I'm Praneeth. I taught in Ahmedabad. I taught 7th and 8th grade as a Teach for India fellow. Yeah. Priyank. Hi everyone. I'm so immensely happy to have you all here. My name is Priyank and I am a doctoral research scholar at NIPA. Saurav. Hello everyone, my name is Saurav Nanda. I am a career consultant. I'm so happy to invite all of you here. Go ahead, Pallavi. Hello. बहुत अच्छा लगा. It was really nice listening to all of you. So I am Pallavi. I am a human rights activist. So welcome, and we think that it will be a very engaging session with each one of you. Okay. So we start our discussion. Firstly, I want to understand from all three of you, what are the challenges that you're facing right now? पहले था कि स्कूल जाते थे, सब कुछ ठीक था, पढ़ाई हो रही थी, बुक्स मिल रही थी, बट अब इस पेंडेमिक में schools are shut for 6 months and आप घर पे हो. What are the different challenges you're facing at home? Kashish, would you like to start? Okay, Didi. So the challenges we are facing, it's really not easy to sit at home for 6 months without going to school. And I just love going to school, meeting friends, studying. और स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता, वहाँ पे एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है हमें पढ़ाई के लिए. और सबसे मेन बात ये है कि अभी 10th क्लास में हमें स्कूल से तो बुक्स मिलती नहीं है,
we have to buy the books ourselves. तो कई बच्चों के लिए तो यही like we three of us we have books with us, but और भी कई सारे बच्चे हैं जिनको बुक्स मिली भी नहीं होंगी और उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी क्या पता ना हो, फोन वगैरह, जैसे कि टीचर्स हमारे साथ पीडीएफ शेयर कर देते हैं बुक्स के, बट इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि हर किसी के पास फोन्स हो, लैपटॉप्स हो। तो ये सब लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने भी किए थे कि वी वर नॉट एबल टू गेट द बुक्स, शॉप्स वर क्लोज्ड, सो वो काफी परेशानियों से हमें बुक्स मिली, बट नाउ वी हैव आवर बुक्स एंड स्टडिंग। बट स्टिल घर पे पढ़ाई करना इज अ रियली डिफरेंट थिंग। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने लंबे टाइम तक स्कूल ही नहीं जाएंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। So it's really different and a bit difficult also. May I? Yeah, sure, Hina. ऑनलाइन क्लासेस एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, मेरी बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। टाइमिंग्स का बहुत इश्यूज आता है। फिर जिस तरह स्कूल के कुछ ऑनलाइन क्लासेस मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैं घर में बस स्कूल से सिर्फ वर्कशीट आती हैं, वर्कशीट्स कंप्लीट, देन फिर घर में दीदी भैया हैं मेरे, मैं उन्हीं के साथ पढ़ती हूँ, वही मुझे पढ़ाते हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है इस टाइम पे तो, बट मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं हो पाता है, बट ऑनलाइन क्लासेस नहीं। हीना, ऑनलाइन क्लासेस आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी? मेरे स्कूल की नहीं, अब मेरे स्कूल में तो नहीं हो रही है, बट यस गुनगुन दी अभी तो नहीं हो रही, अभी सिर्फ हमारी क्लास में वर्कशीट्स मिल रही है। अच्छा कैसे? अच्छा, हाँ बताओ भैया को कि मतलब वर्कशीट्स कैसे हैं, क्या हो रहा है, मतलब मिल रही एग्जैक्टली स्कूल के थ्रू टीचर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप तो वर्कशीट आ रही है, कैसे आप उसमें डाउट सॉल्व करते हैं, कैसे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरी टीचर्स ने तो यही बताया, गवर्नमेंट की तरफ से वर्कशीट आती हैं डे टू डे, 1 डे में 2 या 3 शीट्स आते हैं, सिलेबस बेस्ड होता है वो। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसी को क्लियर करने के बाद फिर आपको 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद फिर मैम को सेंड कर दो, बस वही होता है। 5 to 6 डेज जैसे रेगुलर स्कूल का होता है, संडे को हाफ डे होता है, हॉलीडे होता है, एंड 5 to 6 डेज वर्कशीट्स कंप्लीट करके वही होता है बस। यस भैया। तो बिना क्लास, बिना पढ़ाई, मतलब बिना आपको सिलेबस पढ़ाया नहीं गया है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्कशीट आप करके दें, कैसे? हाँ, मतलब वर्कशीट होती है, उसमें मींस फॉर एग्जांपल मैथ्स का चैप्टर है रियल नंबर्स, तो उसका एक टॉपिक हाफ पेज पे पूरा एक्सप्लेन करते हैं रियल नंबर्स क्या है वगैरह। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करके आपको सबमिट करना होता है क्लास ग्रुप में। अभी तक तो यही चल रहा है फिलहाल। एंड बेटा, अगर जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा आपको नॉलेज पीस दिया जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन जैसे इन केस आपको डाउट्स हो जाए, कभी कभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट ऐसे समझ नहीं आते लिखे हुए, एंड फिर उस वे में आप क्या करते हो? मेरे लिए तो फिर मैं सिर्फ अपने भाई बहन से पूछ लेती हूँ, अगर क्यों टीचर से पूछती हूँ तो टीचर्स वही कहते हैं कि मैं अभी ऑनलाइन समझा नहीं पाऊंगी, मैं स्कूल रीओपन होंगे तब समझाऊंगी, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। फिर मैं तो अपने भाई बहन से पढ़ लेती हूँ ताकि वो करने वाली। यस गुनगुन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? यस दी सेम, बट हम हैंडल भी कर सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हम अपने भाई बहन या फिर हमारे टीचर से पूछेंगे, तो टीचर्स तो अभी फ्री नहीं होंगे, तो फिर हम उस वाले क्वेश्चन को जो टीचर ने समझाया होगा उसे देख के समझ के, अगर हमें कोई डाउट है तो फिर अपने भाई बहन से ही पूछते हैं। अच्छा, Kashish, what is your yeah you have a question? Yes. What? No, Kashish, go ahead. कशिश, आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज में? इज इट सिमिलर विद एसकेवी और इज इट डिफरेंट?
different? No, it's a bit different because in my school online classes are going on. So we have given a timetable for an entire week. और उस टाइम टेबल में हर दिन 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, 1 hour for 1 subject. तो 3 घंटे की क्लास तो हर रोज होती है और उसमें मतलब वर्कशीट्स जो CBSE से आ रही हैं वो काफी स्लो चल रही हैं. मतलब मेरी क्लास में हम लोग हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी जो वर्कशीट है वो पिछले ही महीने से आनी स्टार्ट हुई हैं. तो हमें वो मेरे लिए तो वो वाली वर्कशीट्स इजी हैं क्योंकि वो वाला कंसेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं. और अगर कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी या फिर वर्कशीट्स के टाइम पे भी, तो हम अपने फ्रेंड्स के मतलब हर सब्जेक्ट के डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, तो फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं, फ्रेंड्स में आपस में डिस्कस कर लेते हैं. या फिर टीचर्स ने तो कह रखा है कि कभी भी कोई भी डाउट हो तो वो भेज दिया करो, जब भी उन्हें टाइम मिलेगा वो उसका सोल्यूशन भेज देंगे. और हमारी वर्कशीट भी जो हम सेंड करते हैं सॉल्व करके, वो साथ के साथ टीचर्स ग्रेड कर देते हैं और उन्हें चेक करके हमें बता भी देते हैं ताकि जो भी कोई मिस्टेक हो उसे हम सही कर पाए. अच्छा. एंड हीना, गुनगुन, आपका भी यही एक्सपीरियंस है? आपकी टीचर्स भी आपको चेक करके फीडबैक देती है, समझाती हैं, या नहीं, ऐसा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, समझाती तो है, ऐसी बात नहीं है कि टीचर्स भी बहुत हेल्प कर रही हैं. वो भी कहती हैं कि कुछ कुछ चीजें हो नहीं पा रही हैं तो कुछ कुछ डाउट्स दे दो, जैसे क्लियर हो पाएंगे, टाइम हमें मिल जाएगा तो हमें समझा देते हैं वो लोग भी. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Anybody who has any question till here? Priyank, Saurabh, Pallavi, Praneet. मुझे पूछना है, आप जैसे बोल Yes. रहे हो ना, आपके एल्डर ब्रदर, बड़े भाई या बड़े बहन जो भी है वो आपको समझाते हैं. सोचो अगर वो ना समझा पाए तो क्या करते हो आप लोग? सो ऑनलाइन ही कर पाते हैं. जब ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है तो यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग पढ़ लेते हैं. अनअकैडमी हो गया, फिर स्टडी रैंकर्स हो गया, तो वहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. एंड मैं तो या फिर मेरे ब्रदर या सिस्टर नहीं होते हैं तो मैं टीचर के पास जाती हूँ, क्योंकि अगर जब हम उन्हें फोर्स करेंगे तो ऐसा तो नहीं है टीचर नहीं बताएंगे. वो फिर हमें जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो हमें जरूर बताते हैं. ठीक है. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, मतलब कि फैमिली में हमारा एनवायरनमेंट कैसे पढ़ने के लिए, कि बहुत सारे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली में रहते हैं. किसी की जॉइंट फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर है, किसी का घर छोटा है, इतनी स्पेस नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स हैं. तो जनरली आपके और आपके फ्रेंड्स में आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व करे हैं कि हमारा घर पे लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्ट कर पा रहा है हमारी पढ़ाई के लिए कि नहीं? सपोर्ट तो करते ही हैं, हमेशा करते हैं सपोर्ट घर में, लेकिन कभी कभी टाइमिंग का इश्यू हो जाता है. फिर कभी कभी थोड़ा पेरेंट्स को समझाना पड़ जाता है कि क्यों हम लोग ऑनलाइन हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि ऑनलाइन करके ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि कुछ पढ़ते हैं नहीं, कुछ अलग जा रहे हैं, किसी और दूसरी चीज में जा रहे हैं. बट उनको समझाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए. और फिर टाइमिंग्स भी बहुत इश्यूज हो जाती हैं. फिर बस ऐसे मेरे टाइम पे तो यही होता है मेरे घर में, बट सपोर्ट हमेशा करते हैं. यस दी. और मेरा तो मतलब जैसे फोन पे अगर पढ़ाई होती है तो कुछ थोड़ा समझ भी आता है. जैसे अगर हम रियल पढ़ रहे हो तो मैम से हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें समझा देती है. बट ऑनलाइन हमें टैक्स पे भेजना पड़ता है कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, देन फिर वो समझाती हैं. फिर और घर में नेटवर्क प्रॉब्लम, फोन्स में कभी आवाज सुनाई दे ना दे, इसलिए यही प्रॉब्लम्स होती है. कशिश? Yes. So I have younger brother and sister at my home. तो उनके और हमारे घर पे सिर्फ एक स्मार्टफोन है, और तो उसके लिए हमें वर्कशीट्स वगैरह आती है, मेरी भी, मेरे दोनों ब्रदर सिस्टर की भी, तो वो भी करनी पड़ती है. तो उसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे रिसोर्सेज की. लेकिन एनवायरनमेंट तो स्कूल जैसा तो घर पे नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि स्कूल में हमेशा यही रहता है कि
हर चीज रूटीन में चलती है कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, या फिर इस टाइम गेम्स है तो इस टाइम ही के लिए गेम्स है। लेकिन घर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा तो शेड्यूल बिगड़ गया है घर पे, कि लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, और फिर मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प भी करवानी पड़ती है घर में, तो उन सब चीजों में पढ़ाई हो रही है थोड़ी बहुत इफेक्ट, क्योंकि स्कूल जैसा एनवायरनमेंट तो मिल नहीं पा रहा। और घर में होते हैं हमें भी यही लगता है कि ठीक है यार, पूरा दिन पढ़ाई कर लेंगे आराम से, और उसी वो प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में वो रह ही जाता है, और फिर बाय द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि यार कुछ ही नहीं किया आज। तो ये काफी शेड्यूल की प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे तो। बाकी फैमिली जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें तो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे 3 आवर्स मिल जाते हैं मेरे को आराम से। हाँ, तो बस मेरा तो यही है। Any questions that you guys have? Priyank, Saurabh, Pallavi, Puneet? Yeah, I think there are a lot of questions, but starting with one simple one, I think Hina talked about this Unacademy and use of online resources and everything. So you know, Hina, I'm just wondering, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि when you access resources like this, like those online resources, so which you find more comfortable, मतलब जब टीचर क्लास में पढ़ाता है या पढ़ाती है तो वो एक बार एक टॉपिक टच करते हैं, तो पर अनअकैडमी में आप 3 बार 4 बार कितनी बार भी उसी टॉपिक को देख सकते हैं, तो कौन सा ज्यादा फ्रूटफुल लगता है, फेस टू फेस टीचर के साथ या ऑनलाइन? नहीं, फेस टू फेस टीचर के साथ मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बट समझ आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, टीचर्स भी पूरा समझाती हैं, बट एक होता है ना ऑनलाइन क्लास, बट एक आप और एक स्मार्टफोन हो तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाता है, फिर 4 टाइम्स वीडियो चलती है, तो मुझे ऑनलाइन ठीक लगता है। Anybody who has a similar or a different view than Hina, online or a physical classroom? मुझे तो जब टीचर सामने फेस टू फेस समझाती है उससे बेटर समझ आता है, क्योंकि हमें टीचर एक ही बार पढ़ाए, लेकिन अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें रिपीट करके हमें अच्छे से समझाती है। बट ऑनलाइन में भी वो हमें अगर हम वीडियो देखें तो हमें खुद उतना नहीं समझ आता जितना हमें टीचर समझाती है तो समझ आता है। मुझे कुछ पूछना था, तो जैसे आप अनअकैडमी में करते हो, मतलब क्लासेस मतलब समझते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस है 1 by 1 स्टेप, राइट, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो, तो उसमें क्या आप लोग को कोई तकलीफ मतलब प्रॉब्लम होती है? वो इजी होता है क्या? जैसे टीचर्स का क्या है, आप क्वेश्चन पूछ लो तो टीचर्स बता देंगी, बट इसमें एक प्रोसेस है ना कि आपको एक्सेस करने के लिए ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें क्या कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है? Can you repeat please? मैं बोल रही हूँ, जैसे आप टीचर्स में क्या होता है, अगर आपको टीचर्स कुछ समझाती है तो आप समझ लेते हो, बट अनअकैडमी में क्या है कि एक प्रोसेस है ना कि आपको ऐसे लॉगिन करना है, फिर आपको वो करना है, तो उसमें क्या आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम आती है? अनअकैडमी ऐप पे नहीं हूँ, वीडियोस यूट्यूब पे आती है, मैं बस वही चैप्टर वाइज वही समझती हूँ। अच्छा। हाँ जी, वही देखती हूँ। ठीक है, any other question, Priyank? You have more questions? Yeah, there again so many of them. मैं एक बात मैं सोच रहा था कि you know what I started to feel is कि school as an institution, जब हम स्कूल की बात करते हैं ना, तो नॉट जस्ट कि वहां पर आपको 5 या whatever नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसका पैराडाइम बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब सिर्फ वो पढ़ाई के लिए नहीं, वहां पर आप जब आप रूटीन की बात कर रहे हो, दोस्तों की बात कर रहे हो और एवरीथिंग, बट मैं समझना चाहता हूँ कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन यू टेक स्पेसिफिकली लर्निंग, व्हेन यू फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर एस्पेक्ट्स व्हिच इज हार्ड टू डू, बट स्टिल लर्निंग के रेस्पेक्ट में जब आप स्कूल को देखते हैं, तो हाउ इफेक्टिव दैट इंस्टीट्यूशन इज। जब आप स्कूल से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं अपने भाई बहनों से कैसे हेल्प से या फिर अनअकैडमी की हेल्प से, या एंड जब आप स्कूल में टीचर के साथ कर रहे थे, अभी भी एक ब्लेंडेड मॉडल मान सकते हैं जहां पर टीचर आपको थोड़ा, आप थोड़ा ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, थोड़ा टीचर से पूछ लेते हैं, बट हाउ इफेक्टिव दैट इज कि आप जब स्कूल में थे और सिर्फ टीचर के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे थे।
ठीक है। भैया मेरा सवाल था। मेरे लिए तो क्या बोलो कशिश बोलो। ओके सो मेरे लिए तो स्कूल में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। मतलब भले ही हम ऑनलाइन में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज की डेट में, यूट्यूब, गूगल, कुछ भी चाहिए हो एक ही बस सर्च करो और सब कुछ आ जाता है, लेकिन टीचर्स की समझाने में एक अलग ही बात होती है। मतलब हम लोग उनके सामने सामने एकदम वो हमारा फेस देखते ही समझ जाते हैं कि हमें कुछ चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। हम उनसे पूछते हैं और जरूरी नहीं है कि हम खाली टीचर से ही सीखते हैं। हमारी क्लासरूम में शुरू से ही पीयर लर्निंग रही है, तो टीचर्स भी ये चीज बहुत एनकरेज करते हैं कि अगर टीचर कोई बात नहीं समझा पा रही है तो क्या पता कोई बच्चा ही किसी बच्चे का फ्रेंड उसे और अच्छी तरीके से समझा दे। तो ऑनलाइन क्लास में ये चीजें नहीं होती, और ऑनलाइन क्लासेस भले ही हम अपने फ्रेंड्स के साथ करें, अपने टीचर्स के साथ करें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने इश्यूज होते हैं। नेटवर्क इश्यूज आ गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें हर रोज फेस करनी पड़ती है, तो लर्निंग उससे इफेक्ट होती है। तो इसलिए स्कूल का एनवायरनमेंट ज्यादा ठीक है मेरे लिए तो लर्निंग के लिए। यस या सो बेटा जैसे एडिंग टू व्हाट प्रियांक भैया आज की हमारा सिर्फ एम मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ना नहीं होता व्हेन वी गो टू स्कूल। There are so many other things that we learn, starting from morning prayer. We learn something in the prayer. Then we have our classes. Then we have activities. Then we have time with the teachers, friends, and school में इतना कुछ चलता रहता है। तो आपको लग रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं वो लर्निंग स्टॉप हो रही है। लाइक मैं मैथ्स के तो कुछ कॉन्सेप्ट्स कर पा रही हूँ यूट्यूब से, बट बाकी चीजें भी तो होती है जो मैं सीखती हूँ स्कूल से। मेरी कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम क्लास में छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं, वो तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है कि दैट इज यू आर फाइन विद दैट? नहीं दी, मुझे तो लग रहा है कि मेरा ये मतलब जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में हमें सिर्फ हम और मतलब यूट्यूब में हम वीडियो देखेंगे, हमें समझना है, सिर्फ मैथ्स के 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, बट बाकी सब्जेक्ट जो हम स्कूल में पीरियड वाइज करते हैं वो नहीं कर पाते। मतलब और जो हम जैसे कि हम जैसे कशिश ने बोला कि स्कूल में जब हमें टीचर्स नहीं समझा पाती तो हम स्टूडेंट से ही समझ लेते हैं। जैसे किसी को समझ आता है तो हम उनसे अपना क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, वैसे ऑनलाइन में नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है हाँ कि ये मेरा उसमें टूट रहा है। ठीक है। हिना अनम्यूट करो, अनम्यूट। शेड्यूल की बात बहुत आ जाती है यहाँ पे। स्कूल में एक शेड्यूल होता है आपका कि हाफ एन आवर ये वाला सब्जेक्ट है, हाफ एन आवर ये वाला सब्जेक्ट है, बट घर में पूरा शेड्यूल ना पूरा खराब हो जाता है। मतलब आपका मन कहता है कि नहीं मैं तो अभी टीवी देखूंगी, बाद में मैं पढ़ लूंगी, पढ़ना ही तो है, कौन सा भी स्कूल जाना है। मेरे लिए तो शेड्यूल भी बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है। मतलब मैं पढ़ती नहीं हूँ, एकदम लेजी हो गई हूँ इस टाइम पे। शेड्यूल मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एनवायरनमेंट के हिसाब से। और हाँ, जैसे आपने प्रेयर और ये सब चीजों के बारे में भी बोला, तो स्कूल में हम रोज सुबह अच्छे से रेडी होके जाते थे। सुबह मॉर्निंग असेंबली में योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर हमारा डे स्टार्ट होता था। तो मतलब काफी ऐसा फ्रेश सा फील होता था। लेकिन घर पे मेरे साथ जो भी चल रहा है वो कि लेट उठते हैं कभी कभी और कभी कभी ऐसे ही बस बैठ जाओ ऑनलाइन क्लास में, आधा समझ आ रहा है आधा नहीं आ रहा, फिर वो दोबारा पूछना पड़ता है। और घर में हम कितना ही ट्राई कर लें कि योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन नहीं हो पाता। शेड्यूल की तो सच में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफी स्कूल में ऐसा होता है कि मैंडेटरी होता है कि भाई करना है तो करना है, लेकिन घर में जब पेरेंट्स भी देखते हैं कहते हैं चलो कोई बात नहीं कर लेंगे बाद में। लेकिन स्कूल जैसा एनवायरनमेंट, वैसा शेड्यूल घर पे नहीं मिल रहा। और हाँ, उसकी वजह से हो रही है हमारी फिजिकल हेल्थ भी काफी इफेक्ट हो रही है। घर पे हम लोग सोते रहेंगे, कभी कभी लेट के भी ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं।
मतलब बिना जबरदस्ती के काम नहीं चलता, जबरदस्ती जरूरी है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का थोड़ा इशू है, वो सबके साथ ही हाँ, है। एक प्रेशर तो जरूरी होता ही है। But this is calling for a deeper Yeah. मतलब a deeper issue which I am saying कि school as such is an institution जो which makes things possible because it forces on you, मतलब you know कि वो आप पे जबरदस्ती कर रहा है इसलिए चीजें हो रही, इसलिए नहीं कि आप पढ़ना चाह रहे हो, इसलिए नहीं कि आप उठना चाह रहे हो या आप योगा करना चाह रहे हो या कुछ नहीं। नहीं, स्कूल ने एक मतलब डंडे के बिना काम नहीं चलता है, वो डंडा स्कूल का हो या घर का हो या कैसे भी हो, तो वो जबरदस्ती रहनी चाहिए। ओनली देन दैट काइंड ऑफ लर्निंग हेल्थ इज एवरीथिंग कैन हैपन। हाँ, और मैं भी एक चीज ऐड करूंगी, मेरे भी ब्रदर हैं जो मुझे बार बार फोर्स करते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, बट नहीं हो पाता है, शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है, बिल्कुल मन ही नहीं करता है कुछ करने का। कहते हैं कि मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, बट हो ही नहीं पाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, लाइक वो सबके साथ ही है। एंड आपने ऐसे कशिश ने बोला कि फिजिकली हम लेजी हो गए हैं, फिजिकल चैलेंजेस भी हो रहे हैं। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इमोशनल चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। स्कूल में जाते थे, टीचर से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, यू हैड अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई यू कुड डिस्कस इट विद डिफरेंट पीपल। अगर घर पे नहीं हम शेयर कर पाते, क्या हमें इस पीरियड में कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं? लाइक वो सपोर्ट सिस्टम एकदम से चला गया, सारे फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यस दी, मेरे मतलब ओके, हिना गुनगुन फर्स्ट। नहीं, गुनगुन बोलो। चलो गुनगुन स्टार्ट। हाँ दी, जैसे कि अगर घर में हमारे बीच अगर कुछ होता था या फिर मन में कोई बात होती थी, फ्रेंड से हम शेयर कर सकते थे, मतलब कोई हमें प्रॉब्लम होती थी जो हम घर में नहीं किसी से शेयर करके फ्रेंड से शेयर कर सकते थे, वो सब मिस हो रहा है। मतलब अगर घर में किसी से कुछ भी बात हो जाती है या फिर कोई हमें कुछ कह देता है तो वो हम किसी को नहीं बता पाते हैं। मतलब अगर हम स्कूल जाते थे तो हम अपने फ्रेंड से हर चीजें शेयर करते थे, वो भी हमसे शेयर करते थे, तो वही सब। हाँ, मेरा भी सेम पॉइंट था जैसे गुनगुन ने कहा कि मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं घर पे, कभी कभी बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट से बन जाता है, थोड़े परेशान से हो जाते हैं कभी कभी चीजों को लेके, तो फ्रेंड सर्कल होता है तो वहाँ पे डिस्कस हो जाता है, बट इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। सेम पॉइंट था। कशिश, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? यस दी, तो अभी जैसे पैंडेमिक के टाइम पे पेरेंट्स का जो इनकम है वो भी काफी इफेक्ट हो रही है, तो इस वजह से उस इनकम जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी घर में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो स्कूल जब हम जाते थे तो एक तरह से वो डिस्ट्रैक्शन होती थी हमारे लिए कि फॉर 6 आवर्स वी आर सेपरेट फ्रॉम आवर होम, और स्कूल ही है जो भी है उन 6 घंटों के लिए। लेकिन अभी हमें घर पे ही रहना होता है, उसी एनवायरनमेंट में हर टाइम, बाहर भी नहीं जा सकते, तो उस एनवायरनमेंट में रहना, कॉन्टिन्यूसली पढ़ना और अपने छोटे भाई बहन का भी ध्यान देना, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और उस सब चीज में तुम्हारे इमोशंस को जगह मिल रही है या नहीं मिल रही उसका भी कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हर कोई तुम्हारे ओपिनियन सुनने के लिए बहुत इजीली तैयार हो जाता है। तो उस चीज की भी बड़ी परेशानी है, पहले ढूंढना पड़ता है कि भाई किसे बताएं किसे बताएं। फ्रेंड्स होते थे तो आराम से उनसे बिना किसी हेजिटेशन के बोल दिया करते थे, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स के साथ और छोटे भाई बहन के साथ तो बिल्कुल शेयर कर ही नहीं सकते, तो वो चीज काफी मिस हो रही है। और हाँ, इमोशनल हो रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल लेकिन कोई नहीं, ये इस दौर में भी हम लोग फिर स्ट्रांग हो जाएंगे आगे के लिए। या सो लाइक कशिश, आपने बोला कि फैमिली की इनकम में प्रॉब्लम हो गई है। आई थिंक इट इज विद ऑल ऑफ अस, इवन पीपल लाइक अस हु आर वर्किंग, आवर सैलरीज हैव गॉन डाउन एंड वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। तो आपने अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर दिया। हैव यू स्पोकन टू योर फ्रेंड्स जिनकी वजह से, जिनकी फैमिली एनवायरनमेंट या फैमिली इनकम की वजह से उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है?
इमोशनली भी, उनकी एकेडमिक्स पे भी, and they're not able to do anything. Like yesterday you were mentioning that Laiba has gone back to her village. मतलब what are the reasons कि लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं? यहाँ पे भी तो उनकी इतनी पढ़ाई हो रही है, like ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ हो रहा है. आपको नहीं लगता है ऐसा लॉस भी हो रहा है उनके पढ़ाई का? हाँ, मीन्स ये होता है ना कि अब लाइबा का अगर बात करें तो वो रेंट पे रहते हैं, तो इस टाइम इनकम भी बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो चुकी है, तो रेंट पे रहना, फिर उनको पे करना, फिर अपने घर का कुछ चीजें करना भी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है. तो हाँ, मेरे हिसाब से तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसी वजह से, इनकम इश्यूज की वजह से विलेज गए होंगे वो लोग. Okay. And have you heard more from your friends जो और विलेज गए हैं या जिन्होंने रिलोकेट कर लिया है, छोटे घर चले गए हैं इन रेंट वगैरह बचाने के लिए? नहीं, मेरे Yes, फ्रेंड्स में तो नहीं. नहीं दी, फ्रेंड्स में नहीं. मतलब आसपास सुना है ऐसा कुछ और अपनी कम्युनिटी में? यस दी. मेरे जो नीचे रहती हैं आंटी, उन्हीं की बात, वो रेंट पे रहती थी. वो मतलब घर का रेंट नहीं दे पाई, तो उन पे बहुत वो हो गया, और मतलब उनकी मतलब रेंट की वजह से वो फिर यहाँ से खाली करके अपने विलेज ही चली गई. ओके ओके, ठीक है. Any question that you guys want to ask? Pallavi, Saurabh, yeah. तो आई वाज थिंकिंग कि आप में से आपको पता है कि मतलब सरकार की तरफ से आपको कितनी हेल्प हुई है, या आपकी फैमिलीज को या आपके फ्रेंड्स की फैमिलीज को, चाहे वो राशन में हो या फिर जनधन अकाउंट में अगर पैसा आया है, इस प्रकार की कोई भी अगर योजना का आपका मतलब कोई फायदा हुआ है आपके साथ? तो मेरे आसपास तो सिर्फ राशन का ही है, सिर्फ राशन ही है जिसने काफी हेल्प की है, और बाकी का नहीं है. तो मेरे साथ में हाँ, राशन और वो जनधन अकाउंट वाला मेरे और मेरी मम्मी के अकाउंट में आए थे पैसे कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स के लिए, तो हाँ उससे हेल्प हुई है काफी. यस. ऐसा हुआ है कि किसी ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की है लेकिन बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम खोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ? नो सर. तो एक और क्वेश्चन था. सो पढ़ाई के अलावा, वर्कशीट्स के अलावा टीचर्स आपसे बात करती हैं किसी और चीज के बारे में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो होती नहीं है अभी, तो क्या ऑनलाइन या कुछ किसी और तरीके से कुछ करवा रहे हैं वो? यस सर. हमारी टीचर हमें मतलब जैसे कि स्कूल में हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्लोगन राइटिंग ये सब, तो हमारी टीचर हमें सेंड करती है कि किसी को स्लोगन राइटिंग, मतलब योगा डे था जब, तो हमारी टीचर ने कहा था कि जो योगा डे में हमें एक बच्चों की वीडियो चाहिए, तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते थे, तो हमारी टीचर उसमें हमसे कांटेक्ट करती है. यस भैया. यस सर. और मेरे स्कूल में हमारी मेंटल वेलबीइंग के लिए एक दिन क्लास हुई थी. हमारे स्कूल में जो साइकोलॉजी की टीचर हैं, उन्होंने वो क्लास कंडक्ट करी थी, और अभी मतलब रिसेंटली हमें एक वर्कशीट मिली थी. मतलब वर्कशीट तो क्या, वो एक स्केल टाइप्स था जिसमें हमारे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हमारे इमोशंस हो रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में, घर रहने के टाइम पे. तो उसमें ऐसा था कि नंबर दिए हुए थे, एक ऑलवेज, नेवर और समटाइम्स. तो ये 3 स्केल्स थे और डिफरेंट थिंग्स दी हुई थी, जैसे कि आई क्राई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर आई एम फीलिंग बोर्ड एट होम. तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज थी और जिनमें हमें मार्क करना था ऑलवेज, नेवर या समटाइम्स. तो ऐसी एक्टिविटीज हो रही है मेरी क्लास में. मुझे कुछ पूछना था आप लोगों से. कोविड रिलेटेड कुछ मतलब आपके जो कम्युनिटी में या फिर मतलब स्कूल्स के तरफ से आप लोग को कुछ मतलब बताया गया है कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है या कैसे मैनेज करना है ये सिचुएशन, ये सब बोला गया है आप लोगों को? यस, स्कूल में जो भी ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो हमारी जैसे जो हमारी क्लास टीचर हैं वो हमें मैथ्स पढ़ाती हैं,
तो मैथ्स पढ़ाने स्टार्ट करने से पहले उनकी पहला क्वेश्चन यही होता है कि ठीक हो, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो। वो स्टार्टिंग में उन्होंने सब बताया है कि कैसे कैसे रहना है, अपनी मम्मी की हेल्प जरूर करनी है, ये वो रोज बोलती है। तो हाँ, इस चीज का तो ध्यान रखा जा रहा है स्कूल में। और कम्युनिटी में भी जो लोग सैनिटाइज करने आते, मतलब स्टार्टिंग में जब बहुत ही ज्यादा स्प्रेड था तब रोज सैनिटाइज करने वाले आते थे कम्युनिटी में, तो वो लोग भी माइक्रोफोन से चिल्ला चिल्ला के जाते थे। तो हाँ, ये चीजों का तो ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, और मेरी टीचर भी पर्सनली कांटेक्ट करके हमें बताती थी कि कैसे क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके साथ भी डिस्कस किया है मैंने। हाँ, तो वो पूछते रहते हैं हमसे और प्रिकॉशंस के बारे में बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम ऐसे करना है, अपनी फैमिलीज को भी बताना, जो भी आपके बाहर जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी बताना, इस तरह से। Yes, जी, same. अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछना That's था। जैसे आप लोग फोन यूज करते हो ना पूरे दिन क्लास के लिए, तो आप लोग कुछ नोटिस करते हो कि कितना घंटा आप दिन में मतलब फोन पे रहते हो? जैसे पहले था कि स्कूल में रहते हो, फिर मैं भी दोस्तों से बात करने के लिए या किसी से बात करने के लिए फोन। अब आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम बढ़ गया है? आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा है वो फीलिंग, कैसा है मतलब? यस दी, मतलब जब हम स्कूल जाते थे तो हम स्कूल से मतलब आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, बट घर पे रहते रहते हम फोन पे बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। मतलब फोन पे ही स्टडी करना, दोस्तों से बातें करना, बाहर तो जाना नहीं है, इसीलिए हम फोन पे ही पढ़ाई करना पूरे दिन का। तो मेरे हिसाब से जब हम स्कूल जाते थे वो बेटर था देन फोन पे हम इतना अट्रैक्टिव पहले जितना नहीं था उतना हम अब फोन पे व्हाट्सएप पे हर जगह पे इतने अट्रैक्टिव होने लग गए हैं और मतलब हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं इसलिए। okay. Thank you for sharing all of you. कि फोन की वजह से हमारा टाइम बढ़ गया, and I'm also noticing that you guys are really active on WhatsApp these days. 1 मिनट में रिप्लाई आते हैं आप लोगों के अब। So yeah, that I've also been observing. So another question I have for you, Kashish, since you have younger siblings, आपकी बहन भाई हैं, जिससे हमें 8 तक मिड डे मील मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो वर्किंग है, जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए मोटिवेशन बन जाता है बच्चों को मिड डे मिल रहा है तो हम बच्चों को स्कूल सेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। मे बी आपके घर पे ये प्रॉब्लम ना हो, बट आपको लगता है कि आसपास कम्युनिटी में जैसे अब मिड डे मिल रहा है आपको स्कूल में? लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क, मिड डे मिल रहा है आजकल बच्चों को? नहीं थी। हाँ हाँ, तो कश्यप जैसे अभी मिड डे नहीं मिल रहा, तो आपको लगता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनको कहीं इफेक्ट हो रहा है, या बच्चे जो आसपास है जिनके लिए मिड डे बहुत बड़ा मोटिव बन जाता है स्कूल जाना, उनके लिए भी दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड हंगर प्रॉब्लम्स? यस जी, मतलब मेरे जो छोटे भाई बहन है वो तो खैर नहीं लेते थे मिड डे मील, उन्हें मम्मी घर से ही लंच बना के देती थी। लेकिन है हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई सारे लोग। तो एक बारी हम लोगों ने जब व्हेन वी वर इन 7th क्लास, तब हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था हमारे दीदी भैया के साथ कि कई पेरेंट्स के पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो लोग दोनों पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं तो उन्हें बच्चों का टिफिन प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वो एक मोटिवेशन होती है कि चलो भाई खाना तो मिल जाएगा स्कूल से। लेकिन अब इस टाइम पे खाना तो भाई नहीं मिल रहा स्कूल में, क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स बन गए हैं, कई स्कूल्स क्वारंटाइन सेंटर्स बन गए हैं, तो वहां तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कई बच्चे सफर कर ही रहे होंगे, पढ़ाई के मामले में तो कर ही रहे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक्सेस नहीं है इन सब चीजों के लिए। या फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्हें आता नहीं है और रिसोर्सेज एक्सेस। अब हम लोग तो कर रहे हैं जूम पे क्लासेस रोज हो रही हैं, लेकिन कईयों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, कईयों के पास कुछ आता नहीं होगा उन्हें। और मिड डे मील का भी काफी है कि छोटे बच्चे वो माल न्यूट्रिशन का भी हो सकता है उनको परेशानी। लेकिन फिर वही है, जब उनके पेरेंट्स को दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा कुछ, उनकी स्टडीज तो क्या, पहले हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पेरेंट्स के लिए, तो वो इसलिए वो लोग अपने विलेजेस को जा रहे हैं कि वहाँ पे
बेटर न्यूट्रिशन उन्हें मिल पाएगा। फिर उससे बाद में जब थोड़ा कम होएगा ये कोरोना का स्प्रेड, तो फिर उनकी स्टडीज में काफी इफेक्ट होएगा। Yeah. Yeah. Thank you, Kashyap, for sharing. Anybody who has any question related to this? Yeah, Saurabh. तो जैसे आपने काफी ने अभी समझाया था कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी स्मार्टफोन एकदम से यूज करना पड़ रहा है ना? तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करते हो दिन में कि मतलब नहीं अभी मेरा टाइम है, अभी किसी और का टाइम है, कैसे करते हो उसे? प्रॉब्लम्स तो होती होंगी, तो कई बार मतलब आपके टीचर ने भी बोल दिया होगा नहीं इसी टाइम पे आना है, और सबको बोल दिया होगा कि नहीं इसी टाइम पे आना है, तो आपके शायद भाई बहन को भी उसी टाइम पे स्मार्टफोन चाहिए, आपको भी चाहिए, कैसे मैनेज करते हो आप उसे? नहीं सर, मतलब ऐसी सिचुएशंस तो नहीं होती, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, उनको सिर्फ वर्कशीट करके देनी होती है। तो वर्कशीट के लिए पूरा दिन होता है, एक दिन में एक वर्कशीट उनको मिलती है। और हमारे लिए 10th क्लास के लिए एक दिन में लाइक मंडे को 3 वर्कशीट्स और नेक्स्ट डे 2 वर्कशीट्स, तो ऐसे ही चलता है। तो स्टार्टिंग में 3 घंटे तो ऑनलाइन क्लास होती है, फिर वो 3 वर्कशीट्स होती हैं, तो वो मेरा काम 5 o'clock तक खत्म हो जाता है। फिर 5 o'clock के बाद फोन वो लोग ले लेते हैं, फिर वो सॉल्व करके भेज देते हैं, ऐसे। ये जो वर्कशीट्स हैं आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की एक वर्कशीट आती है या फिर कंबाइंड वर्कशीट्स हैं? नहीं No, सर, sir, अलग अलग हैं। जैसे हाँ, ऐसे डेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि एक दिन मैथ्स, साइंस और हिंदी की आएगी और नेक्स्ट डे इंग्लिश और एसएसटी की आएगी, ऐसे। तो बेटा इन वर्कशीट्स का लेवल क्या होता है? इजी होती है, मीडियम होती है, डिफिकल्ट होती है सॉल्व करने के लिए? लाइक इजी होती है। इजी होती है? यस दी, Yeah. इजी होती है। हाँ. मतलब वही क्वेश्चन होता है जो हमें समझ आ जाए, मतलब उस जो मैम ने एक सॉल्व करके दे रखा है, हम उसे देख के अपने आप से कर ले। Okay. And another question I want to ask you, beta, since you are in 10th grade and especially 10th और 12th के boards होते हैं, and बहुत जगह ये हमारे लिए मैटर करते हैं, जो हमारे 10th में मार्क्स आते हैं, 12th में मार्क्स आते हैं। So do you think like when you hear about private schools, वहाँ पे proper online classes हो रही है, 3 दिन में 4-4, 5-5 घंटे हो रही है, तो कहीं आपको ये डर लगता है कि कहीं हम उनसे पीछे ना रह जाए, या हमारे मार्क्स उससे इफेक्ट ना होए, या हमारे मार्क्स लाइक फॉल आउट कर जाए? ये रहता है कभी अंदर? कभी सोचा है इसके बारे में, कि घर पे डिस्कशन हुई है इसके बारे में? हाँ दी, ये मेरे घर पे तो हुआ है कि मतलब स्कूल जैसे रीओपन हो जाएंगे, अगर सितंबर में मान लो हो गए, और सितंबर में ज्यादातर एग्जाम होते हैं, यूटीज होते हैं आप लोगों के, तो एक सिलेबस अभी हो नहीं रहा है और एकदम से फिर सिलेबस आ जाएगा, टेस्ट होने लग जाएंगे, फिर एग्जाम होने लग जाएंगे, तब थोड़ा बहुत प्रेशर बन जाता है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट करते हैं, सिलेबस का कुछ है ही नहीं, तो कब कैसे मैनेज होगा, बस यही है। ये सी ना, यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोले कि अभी हम वर्कशीट कंप्लीट करें, सिलेबस नहीं हो पा रहा। तो जैसे आपकी वर्कशीट्स हो रही, फॉर एग्जांपल इन मैथ्स और इंग्लिश यू हैव 12 चैप्टर्स, तो ये चैप्टर बेस्ड आपको वर्कशीट आ रही है या कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्कशीट आ रही है? नहीं, चैप्टर वाइज ही आ रही है, चैप्टर वाइज आती है। और अभी तक तो मतलब 5 मैथ्स में हमारे सिर्फ 5 चैप्टर तक कंप्लीट होंगे, 4 या 5, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम भी हो पाएंगे इस ईयर में, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले एग्जाम। ओके ओके, ठीक है। Anybody who has a different question? I have a question. So, taking a virus or pandemic, when do you want school to open? Like, कब open करना ही चाहिए? क्योंकि if you go, then there's a chance for the growth to increase. And if you don't go, you want to go to school. So, what do you think? When should we open schools? आपके हिसाब से? हो तो जाए, जल्दी हो जाए, बट एग्जाम और यूटीज ना हो। अगर क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो कैसे होगा?
होना है तो हो जाए स्कूल, हम तो रेडी हैं अभी भी स्कूल जाने के लिए, बस एग्जाम ना ले अभी वो लोग। यस भैया, मेरा भी यही मानना है कि अगर स्कूल को ओपन करना है तो हो जाए, क्योंकि स्कूल जाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। बट यूटीज एग्जाम जब हम तभी दे पाएंगे ना जब सिलेबस से हमें पता हो कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हम करें। फिर तो वो हमारे ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि एग्जाम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, फिर उसमें हमसे कुछ छूट जाए या फिर कुछ ना हो पाए तो फिर वो भी हमारे लिए ही डर है। तो ओपन हो जाए, फिर पढ़ाई भी होए, लेकिन एग्जाम और यूटीज ना हो। पर एग्जाम हो इतना गया तो फिर डेडली दोस्त बात वायरस, कैसे करेंगे? हाँ प्रणीत। आई वाज सेइंग, पर इतना डेडली वायरस यहाँ पर ही जा रहा है, लाइक मेरा घर पे आ रहा है। सो व्हाट डू वी डू, लाइक कैसा बैलेंस करने का है, कब, when is the right time to open, वही इसको सोचना था। But thank you for your opinion. Yeah, Kashish, do you want to add something? अच्छा, I had to ask something. इस ईयर के तो एंड में ही खुलने चाहिए स्कूल्स, क्योंकि अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कम हो रहे हैं केसेस कोरोना वायरस के, लेकिन काफी जगहों पे अभी भी, काफी जगहों क्या इंडिया में अभी भी डे बाय डे बहुत ज्यादा एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। तो अभी अगर स्कूल्स खुल भी गए तो वो पहले जैसा मजा तो रहेगा नहीं स्कूल में। स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग और उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इससे बढ़िया कि घर पे ही ठीक है, घर पे ही पढ़ लेंगे। और इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग तो सेल्फ स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंस है कि टीचर्स जो भी कर रहे हैं वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं हमें समझाने के लिए, हमें सही ट्रैक पे रखने के लिए। तो यहाँ पे जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक उनकी हार्डवर्क का भी कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें सेल्फ स्टडीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Thank you. हाँ, और एक ये भी है कि हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट उन बच्चों को क्या जहाँ पे उनके शायद से अवेलेबल भी नहीं है, उनके पास फोन्स ना, नेटवर्क इश्यूज इतने हैं, उनका क्या होगा। हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं, हमारे अगर ऑनलाइन क्लासेस ना भी हो तो हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं जो हमें समझाने के लिए। बट उन बच्चों को क्या कि जिनके पास कुछ फोन्स ही नहीं है, उनके मेरे ख्याल से है कि गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जिस कम्युनिटी में वो बच्चे जो स्कूल जाते थे बट ड्रॉप अप कर जाते थे क्योंकि उनको घर के लिए कुछ मनी चाहिए होता है, इनकम चाहिए होता है, बट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ही पॉवर्टी में जाएंगे लोग। और जब रीओपन हो भी जाएगा स्कूल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चे स्कूल जाएंगे सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहेंगे कि अब इनकम नहीं है तो उन बच्चों को काम करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है लॉकडाउन के बाद भी, रीओपन होने के बाद भी लेबरिंग तो बहुत होने वाली है इस टाइम पे, चाइल्ड लेबर। सॉरी हिना, बट हमें मतलब जैसे मैं हिना की बात से सहमत हूँ, बट हिना ने जैसा कहा कि जिनके पास फोन नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बट हमारे स्कूल में जिनके पास फोन नहीं है उन्हें स्कूल में जाके वर्कशीट मिल रही है। स्कूल में जाना, अच्छा मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, बट कौन कौन बच्चा जाता होगा ये भी है ना। I think हाँ, लर्निंग एनवायरनमेंट का भी काफी फर्क पड़ता है कि स्कूल में उन लोगों, अब चाहे जो ना भी पढ़ना चाहते हो बच्चे, उन्हें एक एज अ बर्डन लगता हो, लेकिन तब भी उन्हें पढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस कर ही रहे हैं उस चीज में। लेकिन अब इस टाइम पे स्कूल से इतने टाइम तक दूर रहेंगे तो उनका भी माइंड डाइवर्ट हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह। और पेरेंट्स भी फिर अब जिस फैमिली में इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी तो उन्हें तो पहले यही दिखेगा ना कि जब तक हमारे घर में पैसे नहीं होंगे तब तक बच्चों की हेल्थ कैसे देखी जाएगी। और पढ़ाई तो चलो बाद की बात है, पहले हेल्थ सही करना इम्पोर्टेंट है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हो सकता है जैसे हिना ने बोला कि इसके बाद भी चाइल्ड लेबर हो, तो आई थिंक ये बात सही है, हो सकती है। Priyank, we had a question. I think Hina, you should definitely write to Prime Minister Modi. Yeah. These are some very fascinating points, and I think you should definitely write him a letter. Justine can definitely help you do that. ये जो पर मेरे दिमाग में एक बहुत
I just finished with my Okay, thing. okay, no. So बहुत देर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जब पैंडेमिक है, अब जैसे सपोज कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अब हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें सुबह नहीं उठना, हम बहुत खुश हैं, हमें जब पढ़ना है हम तब फोन लेके पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे बोले हमारा शेड्यूल नहीं बन रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, पहले हम कम से कम पढ़ लेते थे, अब हम पढ़ नहीं रहे। तो एक ही चीज, जहां पर एक बच्चा पहले बोला था कि अब मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या फिर कोई बोल रहा है कि नहीं वो दबाव होना चाहिए, तो एक ही चीज को दो तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब पैंडेमिक के टाइम पे मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से कि व्हाट आर दोज थिंग, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एज अ लर्निंग प्रोसेस के अंदर बेनिफिशियल प्रूव हुई हैं, और आप ये चाहेंगे कि जब अगर ये पैंडेमिक खत्म हो या ना हो, वी डोंट नो, बट अगर होता भी है तो ये चीज स्टे करें, इवन इफ इट गेट्स ओवर, यू वांट दोज थिंग्स टू स्टे आफ्टर pandemic gets over, still that should those things, what are those beneficial points which pandemic has brought in with itself? तो भैया गवर्नमेंट ने कुछ टीवी चैनल्स पे स्टार्ट किया है कि ये कॉन्सेप्ट्स टीवी पे समझाए जाएंगे, छोटे बच्चों के भी एंड बड़ी क्लासेस के लिए भी। सो आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू, बिकॉज अगर कोई स्कूल भी नहीं जा पा रहा है इवन आफ्टर दिस पेंडेमिक इज ओवर, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा कि अगर बच्चे घर पे भी रह के टीवी देख के ही उन्हें कुछ समझ आ रहा है, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। बट कौन कितने बच्चे देखते होंगे, मतलब किसको क्या मालूम किसके पास कनेक्शंस हैं या नहीं। और फिर मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे स्कूल आते थे बट बहुत कम टाइम के लिए आते थे, वो कैसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि घर में इतनी इनकम की प्रॉब्लम है, फिर टेलीविजन का ऑन होना। मुझे नहीं लगता कि फैमिली सपोर्ट भी करती होगी उन बच्चों को। हम जैसे तो कर लेते हैं, बट उन बच्चों को क्या जहाँ पे हो ही नहीं पाता है कुछ। लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाले जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, ये फ्री डिश वाले चैनल्स पे भी स्टार्ट किए हैं, और जो ये जो डीडी नेशनल वाले चैनल्स आते हैं इन पे भी स्टार्ट किया है कुछ। मतलब अभी शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, मैंने देखा था एक दिन कि हमें जो टाइम स्लॉट बताया गया था कि इस टाइम पे 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो उस दिन आए नहीं थे। अगर ये काफी थोड़ा इफेक्टिव और हो जाए और इसको कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं कि जो लोग अलग से कनेक्शन लगवा के देख रहे हैं उन्हीं के टीवीज में, बट जिन्होंने जैसे फ्री डिश लगवाए हुए हैं या फिर जो जिनके टीवी में खाली ये डीडी वाले चैनल्स आते हैं, उन पे ज्यादा उन्हें ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई सबके टीवीज में होता है। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप लोगों में से किसी ने बोला था, आई थिंक हिना ने, कि मतलब बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर आप लोगों को लग रहा है कि मतलब जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, इसलिए मतलब बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं मतलब बच्चों के साथ और मानव अधिकार में काम करती हूँ, तो मैंने देखा है काफी बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, और काफी बच्चे, लड़कियों की स्पेशली, बहुत शादी हो जा रही है। तो आपके कम्युनिटी में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने स्कूल छोड़ दिया है या फिर स्कूल नहीं जा पा रहा है? नहीं, मेरी कम्युनिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कम्युनिटी में भी। बट ऐसा होता है कि अगर किसी क्लास में किसी कंपार्टमेंट आ जाती है, कोई फेल हो जाता है, तो बस फिर वो लोग क्लासेस छोड़ देते हैं। यही होता है। फिर हम शायद उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। मैंने आज तक यही इश्यूज देखे हैं, बट कभी वैसा नहीं देखा। So beta, when I was there in the school and हमने डिस्कस भी करा है, हमारी कम्युनिटी के काफी सारे बच्चे रैक पिकिंग में चले जाते हैं पोस्ट स्कूल। लाइक एक ये भी इशू है जहांगीरपुरी कम्युनिटी में। एंड आपने देखा भी होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे दिन में पढ़ते थे, मतलब स्कूल में आके पढ़ते थे, मिड डे वगैरह लेते थे, एंड बाकी जाके फिर वो रैक पिकिंग वाला काम करते थे। अभी आप देख रहे हो कम्युनिटी में अभी, मतलब हैव यू नोटिस्ड किड्स वर्किंग इन द कम्युनिटी? इज इट लाइक सेम और हैज इट चेंज्ड ओवर टाइम? बच्चे अभी नहीं जा रहे पैंडेमिक के टाइम पे? व्हाट इज लाइक व्हाट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड?
नहीं, ये चीज तो इतनी ऑब्जर्व नहीं की है, पर अभी आई थिंक सब लोग इस होप में है कि भाई हाँ स्कूल्स विल रीओपन सून और हो जाएगा सब कुछ ठीक, लेकिन अब वो भी यही है, इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन। जैसे वॉर में किसी ना कुछ लोगों को तो सफर करना ही पड़ता है। तो इस टाइम पे भी, इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे कई सारे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फैमिली में मेंबर्स ज्यादा हैं लेकिन इनकम कम है, और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें जैसे अर्बन एरियाज में उनकी जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए अपनी प्रॉब्लम्स को पहले ठीक करना उनकी प्रायोरिटी है देन गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग। तो स्टडिंग के मामले में तो उनका काफी लॉस हो ही रहा है, और मे बी जैसे हिना ने बोला कि चाइल्ड लेबर हो सकता है बढ़ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, पर इतना श्योरिटी से तो कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा व्हेन दिस कोरोना पैंडेमिक इज ओवर। Thank you guys. Thank you explaining this beautifully. I would leave to like everyone, like, do you have any other question, anything that you have observed, or you want to add anything to this, to the conversation that we're having? Yeah, sort of. तो मुझे आप सबसे ये पूछना था कि आपको क्या इनके बारे में पता है कि जो सरकार की तरफ से बहुत सारे अभी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं कि ऐसे लिखिए और या फिर ड्राइंग बना के भेजिए या फिर आपके दिमाग में कोई नई चीज है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कंपटीशन कर रही है सरकार, आपको इसकी इंफॉर्मेशन आती है? यस सर, हमें मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारी टीचर्स ने स्लोगन राइटिंग योगा के पीछे ये हमें बताया है। नहीं, पर ये स्कूल की तरफ से होगा ना? हाँ, स्कूल की these guidelines are from government only. So picture government communicated to the teachers and then teachers forwarded to the students. Like it doesn't happen at individual level. So my question is basically जैसे बहुत सारे अभी ऐसे कॉन्टेस्ट्स हुए हैं रिसेंटली, और अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए एक और हो रहा है जो mygov.in वेबसाइट वगैरह पे यू कैन गो एंड चेक ऑल्सो। आपको उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और अगर बाई चांस पहुंच गई तो कोई गाइड करने वाला होता है आपको? क्योंकि आपकी जितनी बातें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रियांक भैया ने भी बोला कि आपको ये सब लिखना चाहिए मोदी जी को, तो इसके बारे में आपको कभी किसी ने कुछ बताया या फिर कभी किसी ने गाइड किया इसके बारे में? ऐसी कोई चीज आपने सुनी है अभी तक? नो सर। ठीक है, बस यही था। I had a question. Okay, go ahead. Priyank. Yeah, Priyank. No, my was just abhi solution क्या है आपके वजह से? What do you think could be some solutions that, see, abhi pandemic, even if it goes up till December, do you want to continue studying like this? Or if so, if you want to make a difference or if you want to have a solution, what can you do? For example, scheduling के लिए, if you make a timetable for yourself with the teachers or with, you know, you make like, hey, YouTube में इतने ज़्यादा playlists है, इतने ज़्यादा concepts है, so today I will study this, tomorrow I'll study this, day after tomorrow, blah, 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 blah. So if you make a schedule, will that help? Right? So similarly, do you think of any solutions that you can, you know, make or, you know, work with your friends? Kuch bhi. So even we are facing same problems. It's not just like students are facing the same problems. Even I face the problems where I don't know mera personal life or mera professional life ka kaisa merge ho gaya. So I don't know. I work till 12 o'clock, for example. Like you, I stay up till late and then I wake up very late. Right? So what I try to do is I work with my friends to make some sort of structure or some solution. Say if they do something, I should also do something. So ऐसा कुछ solution है आपके पास, you know, to help yourself or to help any student out there, to help us also? Yes sir, इस टाइम पे सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपने टाइम टेबल के लिए बोला, लेकिन मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं कभी भी टाइम टेबल बना लूं लेकिन उसे फॉलो करने में बड़ी परेशानियां आती हैं, तो वो एंड में वो टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पाता।
लेकिन हाँ, अब क्राइसिस के टाइम पे कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर्स भी जो भी कर रही हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल जितने भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो लोग भी सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक हम खुद से एक चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक हम उस चीज को नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही कह ले। तो इसमें हमें अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और टाइम टेबल कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, और सेल्फ डिसिप्लिन हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। खुद से ही, क्योंकि अब 10th ग्रेड में ऐसा भी नहीं है कि चलो कोई नहीं यूं ही पास हो जाएंगे एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होता है बोर्ड्स के टाइम पे भी, और अभी भी, तो काफी सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है इस टाइम पे। हाँ, और मैं भी कुछ ऐड करूंगी कि टाइम टेबल तो जरूरी होता है। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता, बट मैं अपनी सिस्टर या ब्रदर से कह देती हूँ कि ना अगर मेरा टाइम टेबल कुछ गड़बड़ होने लगे तो मुझे फोर्स करना कि नहीं, तुझे टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो मैं अपनी बहन वगैरह इन सबको कह देती हूँ, मुझे फोर्स करना है कि हाँ मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है, तभी मैं स्टडी कर पाती हूँ, वरना नहीं, मुझसे नहीं होता। Yes, I am also agree with Hina. अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। आप जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग लिख पाएंगे सरकार को, या फिर मतलब जो आप लोग जो अभी फेस कर रहे हो ना, जो सिचुएशन, वो आपको लगता है कि आप लोग एकजुट होके मतलब लिख पाएंगे या फिर कुछ कर पाएंगे? आप लोग को ऐसा लगता है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ करना चाहिए? हाँ हुआ है। हाँ, हम लोग लिख भी सकते हैं, बट कोई है नहीं ना गाइड करने वाला कि कब कैसे क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे क्या फॉलो करना है। Yes, गाइड करने के लिए कोई तो अगर आपको मदद मिले, कोई आपको गाइड करे, तो आप खुद से करना चाहोगे? मतलब अगर आपको कोई गाइड करे, अगर मैं आपको बोलूं चलो ठीक है, मतलब जो भी सिचुएशन है आपको आगे लाना है, क्योंकि बहुत बच्चे ये फेस कर रहे हैं जो आप लोग बोल रहे हो ना, बहुत फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये जा नहीं रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर हम बोले कि हम मदद करेंगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। यस मैम, यस, मतलब अगर यस मिले मैम। प्रॉपर गाइडेंस की, स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें रीजन तो सबको ही पता है कि हम अपने सोसाइटी का, जो भी लोग जो सफर कर रहे हैं इस चीज की वजह से, उनका कुछ डेवलपमेंट हो इस टाइम पे भी, और गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे उन पर, तो हाँ कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। हाँ दी, हम करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई हमें गाइड करे और सपोर्ट करे तो हम कर देंगे। yeah, like we will definitely talk about it, how we can take this forward. And I know that all of you can write well. Like I have read your work. So all of you are great writers. And इस conversation के बाद we will work together and see कि हम ये अपनी बातें, अपनी conversation कैसे आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक है? And in this you can take inputs from more people, like your friends, जिनका आपको लगता है कि वो ज्यादा सफर करे, उनके भी inputs लेके, and we can have something concrete for this. Yeah. Okay. Okay दी. Yes. Priyank had a question, I remember. We will Yeah, take this last quickly. question and then we'll wind up. Yeah. Quickly, see when Kashish told a very very interesting thing when she said that it's a warlike situation and somebody has to suffer, and I'll definitely write an article around it quoting Kashish for sure. But what I was thinking is, see, when we are saying somebody has to suffer, I want to just ask all of you, just जब हम टेक्नोलॉजी की इतनी बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सब कुछ हो रही है, और हिना ने बोला कि बहुत लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं रही है, एंड सो एक अर्बन रूरल ले लो या फिर एक रिसोर्सफुल हैव्स एंड हैव नॉट्स ले लो, मतलब कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ लोग टेक्नोलॉजी का एक्सेस ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी जो सोसाइटी में, समाज में जो गैप एग्जिस्ट करता है अचीवमेंट लेवल के हिसाब से या फिर लर्निंग के हिसाब से, कि कुछ बच्चों के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं।
तो क्या आप लोग को क्या लगता है कि ये पैंडेमिक के बाद, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को और इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो गैप है वो बढ़ रहा है कि अब पहले से कुछ बच्चे, जैसे सपोज गांव में कुछ बच्चे थे, उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, स्कूल था, स्कूल में इतने अच्छे टीचर नहीं है या फिर इतने अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, तो उनका लर्निंग का लेवल बहुत कम था। अब टेक्नोलॉजी भी नहीं है उनके पास, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी है शहर में, तो वो गैप में क्या अंतर आ रहा है? और अगर आ रहा है तो फिर क्या प्रेफर करेंगे? मतलब फिर वो हमें गैप के लिए कुछ करना चाहिए? अगर हम गैप के लिए कुछ करते हैं तो इनकी भी पढ़ाई मुश्किल होगी। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट वी शुड डू अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक? यस सर, वो गैप इंक्रीज ही होता जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें पता है कि जितनी फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में मिलती हैं उतनी रूरल एरिया में नहीं है। अब जैसे मैं सिर्फ अपनी पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के साथ यहाँ रहती हूँ, और बाकी मेरी जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी है वो गांव में रहते हैं। तो जो मेरी दीदी हैं वो वहाँ के एक स्कूल में पढ़ाती हैं, प्राइमरी स्कूल में। तो प्राइमरी स्कूल में भी 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, तो वो भी बताते हैं कि वो कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वहाँ पे, कि पढ़ाई के टाइम पे भी, स्कूल के टाइम पे पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में बच्चों को घर ले जाने के लिए, कि उन्हें अपने फार्म्स में हेल्प चाहिए और घर में भी उनके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए। तो मेरी दीदी को उनके घर जाके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि कितना इम्पोर्टेंट है उन्हें स्कूल भेजना, तब जाके कई पेरेंट्स मानते हैं और कई नहीं भी मानते। तो ये गैप तो शुरू से ही है कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में कितना है डिफरेंस पढ़ाई को लेके, माइंडसेट्स को लेके, और इस टाइम पे तो ये और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो। अर्बन एरियाज में तो मोस्टली आजकल स्मार्टफोन तो हर घर में चाहे एक हो लेकिन हर घर में होता है, और जिनके पास नहीं होता वो उनको सफर करना पड़ता है। लेकिन इनके लिए आई थिंक हम इतने स्मॉल लेवल पे, मुझे नहीं लगता कि अगर हम कुछ करेंगे तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा इसमें। अगर हम गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके या फिर उन लोगों के साथ टाई अप करके जो ऑलरेडी इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना अकेले तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, तो अकेले तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो जस्ट क्विकली वन मोर, मतलब अगर गैप इंक्रीज हो रहा है, हम सब मान रहे हैं गैप इंक्रीज हो रहा है, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर होते, आप एक हायर लेवल पे ब्यूरोक्रेट, एक मिनिस्टर पोजीशन पे होते, मान लीजिए आप ही एजुकेशन मिनिस्टर, आप तीनों एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि क्योंकि गैप इंक्रीज होगा तो आप क्या टेक्नोलॉजी को तब भी इंफ्यूज करेंगे? आप गैप पे ज्यादा फोकस करेंगे या फिर बोलेंगे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कुछ बच्चे अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पढ़ने दो, कुछ रह जा रहे हैं तो कोई बात नहीं? क्या क्या करना चाहेंगे? नहीं, अगर मैं होती एजुकेशन मिनिस्टर, अगर बी ऑनेस्ट, मैं तो ऐसे कहती, जैसे फॉर एग्जांपल जहांगीरपुरी है, तो जहांगीरपुर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, तो वहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए जिनके पास फोन के इश्यूज है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनके लिए ना टैब ये सब प्रोवाइड करवा देती मैं। और स्कूल से, जैसे गुनगुन ने बताया कि जिस बच्चे वर्कशीट नहीं कर पा रहे वो स्कूल आकर लेते हैं, तो उससे टैब प्रोवाइड कर देते, एक बच्चा ले लेता और फिर उनके घर में जो जो हो पाता वो कर लेते। और जिनके घर में नेटवर्क इश्यूज होते उनके कॉलोनी में वाईफाई कनेक्शन करवा देते, इससे तो थोड़ा सॉल्व भी हो जाती है प्रॉब्लम। Yes, I'm also agree with Hina. अगर मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं भी शायद यही करती, मैं बच्चों को टैब दे देती, जिससे जैसे हिना ने कहा, जैसे हमारे टाइम पे अभी भी स्कूल में जाके वर्कशीट लेना वो भी मैं प्रोवाइड करवा देती, जिससे बच्चों को कोई हेल्प मिलती। तो मैं भी यही करती। और सर जैसे मतलब अगर हम बन जाए, हमें अभी तो सीरियसली इतना अंदाजा है ही नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर्स की पावर्स क्या क्या होती हैं और वो क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं ऐसी किसी टीम में होती, एडमिनिस्ट्रेटिंग टीम में, तो मैं ऐसा करती कि टैब और वाईफाई लगवाना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट होए, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि अगर हम एक बच्चे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि
एक जने के पास हो और उसकी लोकेलिटी में 4-5 बच्चे उसी के साथ आके कर लें। लेकिन अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो ये चीज भी पॉसिबल तो है नहीं। तो हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे सब्जी वाला रोज आता है गली के बाहर और सब लोग सब्जियां ले लेते हैं, उसी तरह से कोई हम स्कूल से किसी एक पर्सन को भेज दे उस लोकेलिटी में, और वो ऐसा भी नहीं कि घर घर जाके बच्चों को वर्कशीट दे के आए, पूरे वीक की वर्कशीट्स वो वहाँ पे लेके आए, और जिनको चाहिए या जो बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनसे जाके ले ले, और वीक के एंड में वो दोबारा से और उनसे जो सॉल्व वर्कशीट्स हैं वो कलेक्ट करके ले जाए। बट कशिश, अगर जिनके घर में समझाने के लिए कोई है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी अगर प्रॉब्लम्स है, तो जो वर्कशीट करेंगे बट वो सॉल्व कैसे करेंगे अगर उन बच्चों को समझ में नहीं आया तो? ये भी है। पर अब वही, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि किसी टीचर को उनके घर भेजे उन्हें समझाने के लिए। अब कुछ ना कुछ, और वर्कशीट हो सकता है हम वर्कशीट कुछ इस तरह प्लान करते, जैसे अभी हमारी वर्कशीट आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमें एग्जाम्स में पैसेजेस पढ़ने को मिल जाए और उनको देख के आंसर हमें लिखने होते हैं, इस तरह से वर्कशीट्स आ रही हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम हो बच्चों को, क्योंकि वो काफी इजी लेवल की हो रही हैं। और अगर तब भी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो हम थोड़ा और कोशिश करेंगे कि थोड़ा और, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहे लेकिन थोड़ा और इजी वे में उन्हें समझाया जाए और क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड, ताकि वो इजीली आंसर कर पाए। Yeah. Thank you so much, guys, for your lovely suggestions. And today, I'm really proud of all, of each one of you. You've articulated अपना thoughts इतना so well, and I was not expecting इतने अच्छे से आप सबके साथ communicate कर पाओगे और अपने thoughts आगे रख पाओगे. And I'm extremely proud to be your teacher, and I hope we are able to provide concrete solutions to the government through this forum, through this conversation today, and we will be in touch. And let's see, how we take this conversation forward through other channels. And I just want to end the conversation here. It was lovely having all of you. So gratitude for being here on a Sunday, discussing your thoughts. And yeah, thank you so much, Gungun, Hina, and Kashish, for being here. Thank you. Thank you, Didi, for calling us here. Thanks to you, Didi. Okay. Okay, I will share the YouTube link with you. You can share it with your friends also. Yeah? Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye, Dee.